Hello everyone, today we are going to study Civics Chapter 3, Class 7. So this chapter is about how the state government works. तो हमें पता है कि पूरे देश को जो सरकार देखती है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट्स को देखती है वो है स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल पे है सरकार उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ रखा है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है, जो एमएलएज हैं मीन्स मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या जो मिनिस्टर्स हैं उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सो हियर you can see a story whose responsibility. Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. In many villages, people were found to be drinking unclean water, streams have dried up, and so have tanks. In the worst affected areas, villages have been carrying water across great distances. तो ये दोनों लोग बात कर रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है हमारी स्टेट पे, लोग सिक पड़ रहे हैं और लोग गंदा पानी पी के बीमार हो रहे हैं और लोगों को दूर दूर जाके पानी लाना पड़ रहा है। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। People at the district headquarters, Patalpurams, receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. तो लोगों को डायरिया भी हो रहा है, बच्चों को स्पेशली, और 3 दिन में एक बार जो है पानी वो सप्लाई हो रहा है। On the TV news they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can we really die from it? Who knows? Just hope. I don't get it. My mother, usme that afternoon mein fir discuss karte hain that my mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shri. Haha. Suddenly, stop. This road is blocked due to the rally. They have geared out the Emily's residence. Really? Why? Has he done something? Haha. They seem more angry about what he hasn't done. And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. तो जब ये दो लोग जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि MLA के रेसिडेंट्स के पास लोग धरना दे के बैठ गए हैं, and they are demanding from MLA to take an action, और देखने के लिए कि लोगों की जो तबीयत खराब हो रही है या जो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है उस पर MLA को गौर करना चाहिए. What a loud voice he has. This particular person is actually complaining and representing the society and the public. What a loud voice he has. He must be a leader. Shh, I saw him on TV too. He's a member of opposition. तो ये बोल रही है कि opposition leader का member है. ठीक है, अब यहाँ पे बार बार हमने डिस्कस किया कि एमएलए रिस्पॉन्सिबल है या उसके घर में वो हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं उससे. सो हु इज़ एन एमएलए? सो इन द अबव सेक्शन हमने देखा कि पातालपुरम जो जगह है वहाँ पे अपने पहले भी नाम सुना है हमने, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, एमएलए या एमपीज, इन सब का नाम सुना है. सो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल. ठीक है, they then become the members of legislative assemblies and also form the government. In this way we can say कि MLAs वही हैं जिन्हें हमने चुना है और वो हमें represent करते हैं. ठीक है, every state in India has a legislative assembly and each state is divided into areas or constituencies. ठीक है, तो हर स्टेट में constituencies हैं. Constituency is a small area within the particular state. ठीक है, जैसे अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे जो हिमाचल का स्टेट है उसको 68 असेंबलीज में डिवाइड किया गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको एमएलए बनाया जाता है. ठीक है, ये देखो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब का बना रखा है इन्होंने इस तरीके से. तो स्टेट है, स्टेट के अंदर एक एरिया है विच इज कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उससे एक एमएलए को नियुक्त किया जाता है, मीन्स अपॉइंट किया जाता है. कौन करता है? लोग. तो पब्लिक का ही वो इंसान हुआ, कहीं ना कहीं वही रिप्रेजेंटेटिव हुआ. दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं. हाउ डू द पीपल हु आर द एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स? तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका एमएलए हैज वन more than half the number of constituencies is said to be in majority. ठीक है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा जीत गए हैं. तो हाफ से ज़्यादा जीत गए मतलब मेजोरिटी में है. देन द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजोरिटी और वो क्या बन जाती है? रूलिंग पार्टी. ठीक है, जिसके एमएलए सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते हैं या मोर देन हाफ द नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते हैं, वो बन जाती है रूलिंग पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी. और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो बन जाते हैं ऑपोजिशन. ठीक है, एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल हैज 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 68 एमएलएज होंगे. ठीक है, उसमें से एक आपका
रूलिंग पार्टी और बाकी सारे मेंबर्स ऑपोजिशन के। यहाँ इन्होंने दिखाया, आप आउटलाइन करके इसको देख सकते हैं मैं आपको। Then, candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative is 68, a political party जिसके पास 24 MLAs होंगे, more than 24, वही जो है majority gain कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको half से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आप 68 का हाफ करेंगे 34 आएगा, तो 34 से ज़्यादा एमएलएज जिसके हैं मेजॉरिटी या रूलिंग पार्टी वो बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी विद 44 एमएलएज हैड द मेजॉरिटी और वो बन गई रूलिंग पार्टी। ठीक है, दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 2017 असेंबली इलेक्शंस। ऑल द अदर एमएलएज बिकेम ऑपोजिशन, बाकी सब ऑपोजिशन बन गए। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि बीजेपी के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज जो हैं वो आईएनसी के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, इसके अलावा और भी बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और भी पार्टीज के एमएलएज भी थे, बट बेसिकली जिसके हाफ से ज़्यादा है वो बन जाएगी रूलिंग पार्टी, और मेजर अपोजिशन वो बनता है जिसका रूलिंग के बाद नंबर आता है, वो आपका मेजर अपोजिशन बन गया। और उसके बाद भी कुछ लोग इंडिपेंडेंटली कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सब मिला करके बन जाते हैं अपोजिशन। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शंस द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वही एमएलए जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा। इन केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो वो खुद ही चूज करते हैं आपस में, और जो चीफ मिनिस्टर है वो फिर बाकी लोगों को मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट करता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, गवर्नर जो होता है वो बाकी लोगों को अब अपॉइंट करेगा। तो आपको गवर्नर इज बेसिकली द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड ही शी इज अपॉइंटेड by the central government to ensure the state government works within the rules and regulations of constitution। ठीक है, तो गवर्नर क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि देखता है, और फिर वही जो है जब लोग डिसाइड कर लेते हैं आपस में एमएलए की कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसको अपॉइंट कर देते हैं चीफ मिनिस्टर को, और बाकी मिनिस्टर्स भी चूज करके अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अपना अपना उनका सेक्शन होता है जिसमें उनको काम करना होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस है जहाँ पे सारे एमएलएज, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, वो आ करके साथ में डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग्स जो भी उनको डिस्कस करना है। जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है बस। ठीक है, तो सारे एमएलएज जो हैं उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ वो एमएलए है, दूसरी तरफ वो मिनिस्टर है। ठीक है, Okay. A debate in the Legislative Assembly. Afreen Sujata and many of the students from their school they traveled to the state capital. ठीक है, स्टेट का जो कैपिटल होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, और सभी जगहों पे जैसे कंट्री का कैपिटल होता है वैसे ही स्टेट्स के भी कैपिटल होते हैं। तो इन्होंने जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने विजिट किया था स्टेट कैपिटल को, एंड वहाँ पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, एंड द बिल्डिंग वाज impressive. Children were excited, security checks हुए, और फिर वो ऊपर गए, उन्होंने गैलरी वगैरह देखी, बड़े बड़े हॉल देखे। Now this assembly was going to have a debate on the current problem. During this time MLAs can express their opinions. MLAs जो हैं वो एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं about what should be done by the government। ठीक है, एंड जो विश करते हैं रिस्पॉन्ड करना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो मिनिस्टर होता है वो रिप्लाई करता है जो क्वेश्चन जो है असेंबली में किए जाए हैं, एंड बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं और सरकार को चलाते हैं, एंड However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of legislative assembly। जो decision है, जैसे पार्लियामेंट में जो decision लिया जाता है सबको अप्रूव करना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी अप्रूवल लिया जाता है। In democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. एंड दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो यहाँ पे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं कि किस तरीके से सरकार चलाई जाएगी, क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या क्या करना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने एक डिबेट का एग्जाम्पल दिया है। MLA 1, in my constituency of Akhandgaon, during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that the government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation.
ठीक है, तो यहाँ MLA 1 बोल रहा है कि जो भी कंसर्न पर्सन है, कंसर्न मिनिस्टर है, उसको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में कितना क्योस हो गया, कितनी प्रॉब्लम हो गई और 15 डेथ हो गई हैं डायरिया की वजह से। ठीक है, MLA 2 क्या कहता है? माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन? वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट? I would also like to know how the government plans to deal with the situation which is affecting a large number of people and also spreading. This is an epidemic. एक आपदा है, ये बोला MLA 2 ने, और उन्होंने पूछा कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है और अभी तक क्यों नहीं किया है। ठीक है, वाई वी रीडिंग कि MLA 1, MLA 2, MLA 3 ने क्या किया है, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट डीप इनटू द चैप्टर एंड नो कि असली चैप्टर का कंटेंट क्या है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ना इज वेरी इजी और चले जाना इज वेरी इजी, बट व्हेन यू नो डीप एनालिसिस ऑफ द चैप्टर देन यू आर एबल टू राइट प्रॉपर आंसर्स। इसीलिए एक एक लाइन हम कर रहे हैं। ठीक है, MLA 3 is my constituency of Tolpatti 2 has serious shortage of water. Women travel up to 3 to 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? तो वहाँ ये पूछ रहा है वो कि लोगों को इतनी इतनी दूर जाके पानी लाना पड़ रहा है, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई है, क्यों ये सब फेस करना पड़ रहा है, टैंकर्स अभी तक क्यों नहीं है, कितने पॉन्ड्स क्लीन कराए गए? So they are showing the problems, telling the problems, as well as asking the questions. MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem. Exaggerating means बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. The government has taken the steps to control the situation. So maybe MLA 1, 2, 3 जो है वो opposition party के थे क्योंकि वो question पूछ रहे थे. MLA 4 जो था वो ruling party का है because he is trying to save his own, self और own government, खुद को बचाने की पूरी कोशिश चल रही है. The government has taken steps to control the situation. Water tankers are being put into service. ORS packets are being distributed. मतलब वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हमने तो भाई ये भी किया है, वो भी किया है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की. MLA 5, we have very poor facilities in our hospital. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff have been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave and this is a shame. I think this situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all the families in affected areas? तो यहाँ पे MLA 5 seems to be also from the opposing party, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स ही नहीं है हॉस्पिटल में, ORS कितने घरों में पहुंचेंगे, कैसे हमें पता चलेगा? Is this enough what you're doing? MLA 6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. तो MLA 6 जो है वो again ruling party का है और वो जो है अपना पूरा सेव करने के, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन सेइंग कि पुरानी सरकार ने जो गलती करी थी एंड दे डोंट सी कि वो भी वही सेम गलती कर रहे हैं. सो दे आर नॉट करेक्टिंग, वो पुरानी ही गलती निकाल के बता रहे हैं कि हमने उसको ठीक करने की कोशिश करी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ जैसे बैठक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसको दिखाने की कोशिश किया. In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. जो members हैं, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर बात कर रहे थे. ठीक है, एंड क्योंकि ये सब ना मिलके इनको सरकार चलानी होती है. कॉमन यूज में गवर्नमेंट जो शब्द है उसका ये मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट, सारे मिनिस्टर सब मिलके चीज़ों का ध्यान रखें और उन सब का जो मेन हेड है, ओवरऑल हेड है, वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव मतलब जो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं. All the MLAs who gather together in the Legislative Assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्कशन करते हैं. ठीक है, working of the government. Now, the Legislative Assembly is not only the place where opinions are expressed about work of the government. You will also find newspapers में, TV channels में, organizations में रोज debates चलते हैं about government, about democracy and everything, जहाँ पे लोग अपने अपने views आकर के बोलते हैं. ठीक है, soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by health minister. ठीक है, large number of people from different newspapers were present. press conference में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मीडिया जो है वो तरह तरह के सवाल किया करती है मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल लीडर्स से. ओके, सो यहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह प्रेजेंट थे, तो मिनिस्टर जो है उन्होंने स्टेप्स बताए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है. रिपोर्टर्स ने और क्वेश्चंस पूछे, तो यहाँ पे these discussions were then reported, न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारे डिस्कशंस आए. नेक्स्ट वीक में द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलिपुत्रम डिस्ट्रिक्ट
and they went to visit the families who had lost their relatives and also visited the people in hospitals. मतलब एक तरीके से दौरा किया इन्होंने, सब चीज़ों को देखा. The government announced compensation for these families. Compensation क्या है? आपकी एक किसी की जान गई, उसके लिए आप पैसे ले लो या कुछ और ले लो, इस तरीके की चीज़ें. But we can't compare और we can't हम तोल नहीं सकते हैं मनी और इंसान की लाइफ को. बट यहाँ पे ये कर रहे हैं just to show. The chief minister also said that he thought the problem was not only of sanitation but also of lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the minister for public works to take care of the proper water supply. मतलब पानी की सप्लाई का भी ध्यान रखेंगे और सैनिटेशन वगैरह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सबका ध्यान रखेंगे, ये चीफ मिनिस्टर जी ने कहा. Okay, now we saw that the people in power, like the chief minister and the minister, have to take action. They do so through different departments, जैसे public works department, agriculture department, health department, education department. ये अलग-अलग departments हैं जो अपना-अपना sector संभालते हैं, ठीक है? And they have to answer to whatever questions are being asked in legislative assembly. इसके अलावा reporters जब question करते हैं तो उसका भी उनको जवाब देना होता है because they are very much answerable to the people and the जनता. At the same time, the newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond. For example, by holding press conferences. जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता को गुस्सा आ जाता है. The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and facilities. तो सरकार के पास ये रहता है कि वो नए laws निकाल सकते हैं, ठीक है? For example, it may make it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in urban area. ठीक है, अर्बन शहरी इलाका जो है वहाँ पे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बोल सकती है, क्योंकि लोकल लेवल में हमने पढ़ा है ना, एक पंचायत सिस्टम होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला, तो उनसे बोल सकते हैं कि भाई आपको हर जगह वॉशरूम देखना है. वो ये भी देख सकते हैं कि हेल्थ वर्कर अपॉइंटेड है हर विलेज में. तो ये जो लॉ मेकिंग का काम है वो लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट के करती है. The various government departments that implement these laws for the entire country are made in the parliament. पूरे देश के जो laws हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में particularly स्टेट के laws बनाए जाते हैं. So hopefully it's clear कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फर्क है. Okay, now in a democracy, it is the people who elect their representative as a member of legislative assemblies. लोग ही elect करते हैं मिले इसको, and thus it is the people who have the main authority. तो जैसे बोलते हैं ना, democracy is government for the people, of the people, by the people. तो यहाँ वही चीज़ वो समझा रहा है. जो ruling party members होते हैं, they then form the government and some members are appointed as ministers. These ministers are in charge of various departments of the government such as health and above. Whatever work is done by these departments have to be approved by legislative assembly. This is like जो नेशनल लेवल पे होता है उसी का स्मॉल मॉडल स्टेट लेवल पे भी होता है. नेशनल लेवल में पार्लियामेंट चलती है, स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली चलती है. नेशनल लेवल में प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट लेवल में सीएम होता है. दोनों जगह पे जिसकी मेजोरिटी है वो जीतता है और जिसकी नेक्स्ट मेजोरिटी होता है वो हमारी अपोजिशन पार्टी बन जाता है और बाकी सारे भी हमारे अपोजिशन पार्टीज में ही आते हैं. ठीक है, तो ये इन्होंने इस चीज़ को समझाया है. Okay, a wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity. Research for topics. Okay. The discussions. Teacher divides the class into groups. They discuss the issue and decides. Okay. हाँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उस पर इट्स जनरल थिंग, तो यू कैन राइट डाउन द डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट सॉल्यूशंस टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. उसमें आप इंटरव्यूज दे सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का. आई एम नॉट रीडिंग व्हाट्स इन देयर बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू ट्राई आउट सच एन एक्टिविटी जहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम है जो किसी भी स्टेट की या कहीं की प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे ग्लॉसरी है, आई विल जस्ट क्विकली टेल यू एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर. कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सारे वोटर्स जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी एक स्टेट के अंदर का पार्ट होती है. ठीक है, जब नेशनल लेवल पे भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू वोट जाते हैं और जब स्टेट लेवल पे भी होते हैं तो वहाँ पे भी जो स्टेट के अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ से वोट जाते हैं. ठीक है, then is majority. Majority is जब more than half of the vote एक particular पार्टी की तरफ जा रहे हैं, then that is majority. उसको हम कहते हैं simple majority भी कहते हैं. तो एग्जाम में आपको simple majority से भी देख सकते हैं. So this is of course important. So do write and practice this. Now opposition. Opposition refers to elected representatives जो कि
रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है। एंड वो उनका मेजर काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के एक्शंस को, डिसीजंस को क्वेश्चन करना, उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, उस पर डिबेट डिस्कशन करना लेजिस्लेटिव असेंबली में। देन कम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी गैदरिंग, एक ऐसा वो होता है जहाँ पे जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट्स हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स या फिर चीफ मिनिस्टर या कोई भी लीडर्स हैं जो भी हैं, MLAs MPs, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एंड दिस इज़ मेनली डन ताकि जो भी सरकार है या जो भी आइडियाज़ हैं उन लोगों के, वो सिटीजन्स तक पहुंच सकें थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टेलीकास्ट, टीवी टेलीकास्ट जो भी है उससे पहुंच सके, ठीक है। बट दिस चैप्टर इज डन, आई विल जस्ट क्विकली टेल यू कि चैप्टर में क्या था। देखिए, सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चलती है वो प्राइम मिनिस्टर हेड है, प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेट में लेवल पे देखा जाए तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, गवर्नर, ओके। और मेन हेड जो होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंट कैसे होता है, स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं जिससे जो है MLA रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं बाय पीपल, हम लोग करते हैं। उसके बाद जिसके मेजॉरिटी ऑफ होते हैं MLAs, वो पार्टी जो है रूलिंग पार्टी बनती है, और फिर वो MLAs में आपस में से किसी एक को CM बना देते हैं, फिर वो CM बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। बट इनको ऑफिशियली कौन अपॉइंट करता है, इन सबको गवर्नर, ऑफिशियली गवर्नर अपॉइंट करता है, ओके। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये असेंबली में सब डिबेट डिस्कशंस करते हैं एंड दे आर आंसरेबल नॉट जस्ट टू अपोजिशन पार्टी बट ऑल्सो टू पीपल, ठीक है। वो लोग नए लॉज भी बना सकते हैं और उनके हाथ में स्पेसिफिक पावर्स भी होती हैं जो कि स्टेट लेवल पे होती हैं। पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किए जाते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो लॉ पास होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट पर लागू होते हैं। आई होप विद दिस आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट solutions of these questions, or you want some extra question or worksheet, then just do comment, and we'll meet up in the next class. Thank you so much for joining.